am. Hello everyone. Namaste and a very warm welcome to everyone joining us in this very special live session of Wisdom Waves. I'm Swati Gupta, parenting coach, child psychologist, and today my heart is totally full with gratitude. This Teachers' Day, I have the honor of hosting someone who has been one of the most influential figures in my life. My school principal, my Hindi teacher, my true guide, Dr. Rekha Vaishya ma'am from Bhavan's Gangabaks Kanoria Vidya Mandir, Kolkata. So I want to start this with a small prayer or a small note on this Guru Purnima day. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guru Namo Namah. Thank you, Rekha ma'am, for always being there. So, Rekha ma'am is an educationist with nearly 4 decades of experience in teaching and academic leadership. She has led prestigious institutions including Bharati Vidya Bhavan, Kolkata, and Salt Lake City, Nigeria, and has authored several Hindi textbooks and literary works. Her dedication has been recognized with multiple awards, including the Best Principal Award, the APJ Abdul Kalam Award for Leadership in Education, and the Best Senior Secondary Teacher Award across all Bhavans school in India as well as in abroad. A true visionary mentor, she continues to inspire students, teachers, and institutions alike. So, thank you so much, ma'am, for being here. That's so sweet of you. It's been an honor that you are here. Thank you, Swati. Nice to see you. Hope you are also doing very well. I heard about you many things I heard from you. You are in Gurgaon now, na? Yes, ma'am. I have seen you and I have been also, and I have heard many things about you. You are doing very good job. Good luck. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank So, you. ma'am, I have. Sorry. You were saying something. No, it's all right. Carry on. So, मैम मेरे पास आपके लिए 7 questions है, 5 to 7 questions है. So I'll ask you, and then you tell me basis how you feel what the answer should be. Yeah. Okay. So first question is, ma'am, teachers shape so much more than academics. Now I can tell you more about it because I have seen how you shaped me. So in your view, how do teachers influence a children's confidence, value, future, and how can parents build on that at home? सिर्फ academics नहीं, जैसे आपने जब मैं everything. Yes. all around, I yes. understand. Swati, one thing I have to say, teachers play an important and powerful role in shaping on child's personality and path life. Teachers create confidence through encouragement and recognitions of efforts of child. Teachers help children believe in their abilities. A kind word, a tiny appreciation in front of the class can boost a child for esteemed self life. Teachers is a role model, no doubt. Yes, absolutely. And because of that, children adopt teachers' behavior by observing their behaviors in the class. Yes, absolutely. And we have to say the school is the second home for children. Yes. So children adopt all values from there. It's guarantee. Why I'm telling, if the teacher is absent in kindergarten, school or primary sections, if your class teacher or mother teacher is absent, children are not want to do anything. They want their teachers.
They Yes. want their teachers. Absolutely. And teachers also can show their honesty, respect, punctuality, discipline, everything Yes. That's in wow. their daily routine. And students Correct. adopt these values. These values at home also. If the parents can create a confidence on their child to encourage their tiny and small appreciation, Yes. students can adopt all these values. One Correct. thing more I want to say, if the parents argue with each other at home, children also they adapt and they Hmm. apply in the school with the teachers and with classmates also. So Correct. be careful about these things. Parents must be careful about these things. The child are everything, every behavior they have to do. So Correct. parents Correct. also can show respect and responsibilities in their daily life and choice that Hmm. adopt these things. Wow. Wow. One thing more I can say, if the teacher built foundation, then parents builds the walls and roof, Wow. because both of them are very much responsible for making Hmm. a Hmm. good human being. Correct. Correct. Wow, wow, beautiful मैम, beautiful. That is so true मैम. और आई डोंट नो अगर आपको ये इंसिडेंट याद है, तो मैं हिंदी में बहुत खराब थी. आप मेरी हिंदी टीचर हुआ करते थे, तो मुझे याद है मैं हिंदी में इतनी ज्यादा खराब थी कि आपने मेरे को एक दिन बोला कि स्वाति आपको आपको हिंदी पढ़ने से प्रॉब्लम क्या है. तो मैंने बोला मैम प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मुझे हिंदी समझ नहीं आती, या मतलब मैं सोचती हिंदी में हूँ या लिखती इंग्लिश में हूँ, कुछ ऐसा मैंने बोला आपको. तो आपने बोला बेटा अगर सोचोगे हिंदी में, लिखोगे हिंदी में, तभी तो पढ़ पाओगे हिंदी. तो तो घर में मैंने ये भी क्वेश्चन किया होगा कि घर में बात किस घर भाषा में में करते तब मैंने बोला मम्मा इंग्लिश में बात करते हैं. तो कहते हैं मम्मा को पहले बोलो हिंदी में बात करें, तभी आपको समझ में आएगी हिंदी, क्योंकि आपकी इंग्लिश सही है. अगर हिंदी में आप सोच ही नहीं रहे, हिंदी में नहीं लिख रहे आप. मैंने शायद एक पैराग्राफ लिखा था 9th में, जो एक हिंदी पैराग्राफ थी, वो मैंने पूरा इंग्लिश में लिख दिया था. हाँ, स्क्रिप्ट उसको इंग्लिश में. तो ऐसा आपने बच्चे करते हाँ, हैं. हाँ, तो आपने मुझे इतना वो किया था, मतलब टेक्निकली मुझे आपको मुझे डांटना चाहिए था कि आपने क्या करा है. 9th का पेपर है, आप हिंदी का पेपर में आप इंग्लिश कैसे लिख सकते हो. बट आप मुझसे समझना चाह रहे थे कि ऐसा क्या हो गया कि आपको पता तो है हिंदी का पेपर है, लेकिन आपने ऐसा क्या सोचा जो आप इंग्लिश में लिख दिया. तो आपने पहले मुझे समझा, फिर आपने मुझे समझाया, फिर मुझे आप टेक्निक दिया कि अगली बार आप कैसे करोगे. मतलब ये छोटी छोटी चीजें ना मैम, आप डांट भी सकते थे, बोल भी सकते थे कि नहीं आपने क्यों नहीं किया बेटा, आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए. अगर आप उस समय पीट भी देते मुझे, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता चलता कि मेरी गलती है. लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया. आपने सीधा मुझे समझा और मुझे समझाया कि स्वाति ऐसे करना अगली बार. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी मैम. थैंक यू स्वाति, यू रिमेम्बर्ड मी लाइक दिस. एब्सोल्युटली मैम, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स. डांट तो मैंने आपसे बहुत खाई है मैम, बट बट ऑल दिस इज डांटने का यह रिजल्ट है. हाँ जी. तो ऐसा डांट तो फिर सबको पढ़ना चाहिए, आई थिंक. सो विच कम्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन मैम. सो हम लोग बोलते हैं टीचिंग एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, सब कुछ होता है. तो ऐसी कौन सी मतलब कौन सी अनसीन चैलेंजेस है, या क्या आपने ऐसा देखा है, एंड व्हाट शुड पेरेंट्स लर्न फ्रॉम दीज चैलेंजेस. क्योंकि वो एक सेकंड में बोल देते हैं मैम आपकी गलती थी, मैम आपको सोचना चाहिए था, आपने नंबर क्यों कम दिया. लेकिन आप अंदर ये नहीं सोचते वो बंदी ने आपके बच्चे को जिस तरह पढ़ाया है. मतलब आज मैं आपको एक एज अ टीचर्स मेंटालिटी सुनना चाहती हूँ, नॉट एज अ पेरेंट्स मेंटालिटी, क्योंकि मैं दोनों चीज रह चुकी हूँ. मैंने 10 साल पढ़ाया भी है, अब मैं दोनों बच्चों की पेरेंट भी हूँ. तो मतलब मेरे को वो चीज समझ में आती है डिफरेंस. लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको कैसा फील होता है कि मतलब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए. क्या पेरेंट्स को छोटे छोटे नंबरों के लिए भागना चाहिए और बच्चों का साथ देना चाहिए, या पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि टीचर्स का जो सैक्रिफाइस होता है, क्योंकि देखो क्या है, इसमें बहुत पैसे नहीं है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस सोशल टीवी, दैट ऐसा नहीं है कि टीचर्स से हम लाखों लाखों कमा रहे हैं. टीचर्स बहुत लिमिटेड कमाती हैं, ये सबको पता है. लेकिन फिर भी टीचर्स जरूरी है. एक तो टीचर्स क्यों जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है कि हम अपना बच्चों के फाउंडेशन बना रहे हैं, सब कुछ है.
ना दूसरी चीज पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए, अगर वो बंदी टीचर बनी है तो उसके अंदर कुछ तो पैशन है. 99.9% टीचर्स पैशन से टीचर्स बनती है. यू अग्री मैम? Absolutely. है ना? Very क्योंकि relevant questions nowadays also. करेक्ट. लेकिन पेरेंट्स वो समझ नहीं पाते. वो पेरेंट्स एक एक दो दो नंबर के लिए लड़ने आ जाते हैं. तो आपको क्या लगता है, मतलब पेरेंट्स को क्या समझना चाहिए और हमें उनको क्या समझाना चाहिए? Okay, I will explain. Teaching is indeed a noble profession. Correct. But behind the smiles, parents cannot see their struggles. Correct. That's true. They never see. They always start criticizing the teachers as well as the school, everything, everything. Teachers carry not only just academic responsibilities, but also emotional well-being of many children. Yes. Teachers making lesson planning, correcting notebooks, evaluation work they are doing, Correct. preparing activities, but these all activities are unseen. Their hard work is unseen in front of the parents, in front of the students also, as well as I'm telling you. Very true, very true. Teacher act as a counselor, motivators, friends, guides, as well as sometimes teacher act as a parent. Correct. Even they themselves may be going through personal challenges, but they never care. Teachers compromises on their own family life, time, health, ambitions, everything. A simple gratitude, Swati, thank you or respect. Yes. That mean a lot to a teacher who gives more than we can see. Absolutely. This is the teacher's Guru Dakshina, nothing else. Teachers don't want that much. They just want nothing. Only thank you. Only just respect, nothing else. From the parents and from the students also. Yes, I agree. Wow. That challenges, everyday teachers suffer these challenges and take it. Correct. Absolutely. So what should parents teach? मतलब parents को अपने बच्चों को क्या समझाना चाहिए? You can't do anything. You can't do, because I'm telling you again, this is the Gen Z period, Gen Z sense, Gen Alpha and Millennial. So what you do? Nothing else. They can't behave their parents also. So what the teachers will come there? Yeah. They talk very badly to their parents. Correct. Parents also. बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं बच्चे. आप नहीं कुछ जानते हैं. आप चुप बैठिए. आप चुप बैठिए. आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? We never told our elders, not only parents, our elders never told never behave like this. Nowadays is different. Nowadays पापा भी बच्चों को यार कह रहे हैं, बच्चे भी पापा को यार कह रहे हैं. है ना? वही बात. ये टाइम ही ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते. Absolutely. So मैम आपको क्या लगता है, क्या ये सोशल मीडिया और उसकी वजह से है या क्या है ये चीज? तो आपके हिसाब से हमें बच्चों को सोशल मीडिया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये बून है कि बेन है? या टीवी या स्क्रीन्स बहुत देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? No doubt, today world is the digital world. Correct. And children are very tech savvy. Absolutely they are. Quick learner. Very expressive. And exposed vast information. At the same time, they faces distractions, shorter attention, and pressurized by social media. Instead of that, Swati, you are not rejecting technology nowadays. Yes, very true, ma'am. When the parents can support
guide them. They can do how and when they have to use the digital tools. Second things, build open conversation. So children share freely rather than hiding struggle. करेक्ट, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली मैम. यू हैव टू One thing more, Swati, I want to say, children are imitate what they will see. करेक्ट. If the parents in front of the children balance their screen time and manage stress, children will do same things. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिकॉज दे लव रोल मॉडल्स. Yes. हाँ. एंड हम बोलते हैं ना, चिल्ड्रन डोंट सी व्हाट वी से, चिल्ड्रन सी व्हाट वी डू. What we do. हम गलत करेंगे तो बच्चे को हम चाहे बोले बेटा रीडिंग करो, आप खुद कभी बुक उठा के रीड नहीं करते, बच्चा कैसे रीडिंग करेगा? बस. And Ban and Boon, I am telling you, today is the digital world. You have to face this digital world or social media. Are both are very important, no doubt. Yeah, We are absolutely. also using same things right now. A ban when guided. A boon when unchecked or not guided by elders. Wow. That is the main thing. मैम ये तो बिल्कुल गोल्डन नगेट है, ये ट्रूली एकदम. गोल्डन नगेट है. एकदम. या बून आपके लिए तब है व्हेन यू आर गाइडिंग पेरेंट्स, यू हैव टू लिसन टू दिस. बून लेकिन आपके बच्चे अपने रूम में बैठकर क्या करे, पेरेंट्स सोचते हैं हम भी आराम से हैं, शांति है घर में, बच्चे भी शांत हैं. क्या है, फोन देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फोन देख अनगाइडेड हो गया ना मैम, फिर तो बेन है ही. है ही. वही बात है और कुछ नहीं है. करेक्ट. वाओ वाओ वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल मैम. मैम और एक चीज मेरे लिए अभी बहुत जरूरी है ये जानना, ये एनईपी पॉलिसी में जो 2 बोर्ड्स हुए हैं, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मतलब इज इट गुड, इज इट नॉट गुड, हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प विदाउट एडिंग प्रेशर, बिकॉज ये हुआ तो सिर्फ प्रेशर की वजह से. यस यस, कि नो डाउट. बच्चे बहुत प्रेशर लेते हैं, या फिर बहुत सुसाइड्स होते हैं, या फिर बच्चे ये सोच रहे हैं, या बच्चे ने अपने दिमाग में ये बना लिया मुझे 100% क्यों नहीं आ सकता, तो उसके वजह से बच्चे इतना प्रेशर ले रहे हैं, तो वो प्रेशर बच्चे खुद हैंडल नहीं कर पा रहे, एंड देन दे आर कमिटिंग रॉन्ग थिंग्स, राइट. नाउ टू पेरेंट्स, मुझे ये बताइए, एक तो ये 2 बोर्ड होते क्या है, पहली बात, और दूसरी चीज की मतलब पेरेंट्स कैसे हेल्प करें ये प्रेशर को ना दे बच्चों को. Your question is regarding NEP. NEP. Right? Yes. NEP, we can say in one word, the future of education. New national education policy is designed to make learning more holistic, flexible, and child-centered. Yeah, yeah. And 2 board exams, students can get chance more than one, reducing their pressure of the study. Examination. Yes. Nothing. हाँ, suppose मैंने एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं किया तो मैं फिर से दे सकती हूँ ना वो सब्जेक्ट. दे सकती हूँ. No, Correct. not like that. 2 board exams means one is suppose in the month of July, another is the month of February. If you have not do the best things in the month of July, you are getting the one chance to give the exams in February. So preparation time you are getting. Which type of questions are coming in? School तो कहता है आपसे कुछ नहीं होगा, आपका बच्चा फेल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर इसको मत बैठने दीजिए. School are telling like this. Yes, yes. आप इसको मत बैठाइए बोर्ड में. That's why NAP is designed 2 board exams. So students can get the confidence, yes, I can do. If this exams is worst, so next exams I will do better. Correct. That is the main thing. Child centric हो गया ना जो आप कह रहे हो कि Yes. हाँ, NEP is designed for the children, for the children, by the children. Not ऐसा for the type. school. School is to making money, nothing else. Nothing else. Making money, nothing else. Second things, NEP in short I can say aims is to shape the children well-rounded, and skill power must be there. Skill power. You want skill power, nothing else. Yeah, yeah. And one thing more, though you just now you told me that your daughter is in class 9, National Education Policy
given students flexibility in choice. Nowadays, there is no stream, no Yeah. science, commerce, and arts. The Yeah. open basket. Hmm. The child can choose any subjects. Any If subjects. a Yeah. child has taken physics and chemistry, he or she can take history, legal studies as per their choice. Legal Hmm. studies, history, social science, political Wow. science, whatever. Hmm. Another things NAP has did very good thing is vocational field. They are open the vocational field for the students. Hmm. Vocational skill. They allow students, children to their true interest. They can discover their true interest and talent. Wow. Hmm. Like Hmm. if geography, history, physics, chemistry, all the academic subjects, along with they can take guitar, music, fashion Wow. design, where they have interest. And these Correct. subjects, these vocational subjects are coming in the main subjects. Hmm. These are coming in the main subjects. Wow. तो So आप मतलब in NAP, for 12 we are deciding on what we want to become. yes, That is so good. yes. In the 11, you can see if we are Hmm. taking the fashion design or interior, these are Hmm. also very, very popular business in now, right now. These. Wow. So Wow. NAP is doing these things. And another thing is parents. Hmm. Parents, I must say parents को थोड़ा सा देखिए आपके मार्क्स कोई नहीं देखता आप स्वाति यहाँ बैठे हुए हो मे बी Hmm. ही स्कोर्ड इन बोर्ड एग्जाम्स 99 और 89 और 79 nobody is known आपके Hmm. मार्क्स आपके पीठ पे लिखे हुए नहीं है Hmm. Correct. your identification is your personality and parents must learn these things your Absolutely. identification is your personality your Hmm. attire your outlook how to Yeah. behave from to others how to stand how to talk how Hmm. to respect others these Absolutely. are very important values बोलिए behavior बोलिए whatever Hmm. Hmm. and NAP is doing these things all these things Hmm. Hmm. वाओ वाओ सो मैम मेरे को ये बताओ अब ये हमें पता चल गया एनईपी का ये हमें पता चल गया कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए वैल्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट देयर स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन द very मेन much स्ट्रीम सब्जेक्ट्स एंड ऑल दैट because NAP emphasizes हम्म thinking capability creativity practical knowledge rather than rote memorization या या करेक्ट in your time the rote memorization याद किया और 1.5 पेज लिख दिया हाँ अब हाँ टीचर ने देखा 1.5 पेज लिखा कौन इतना पढ़े 10 में से 8 दे दिया भले हाँ उसमें कुछ भी ना हो करेक्ट हाँ now NEP is preparing for children so they can choose their future career or they can real life challenge they can get वाओ that is वाओ the main हम्म तो हमें पेरेंट्स को भी तो ये समझना चाहिए ना दैट आपके लिए सिर्फ साइंस कॉमर्स आर्ट्स नहीं है आप ये सोचो कि बच्चा किसमें परफेक्ट होना चाहता है अगर वो डांसर बनना absolutely चाहता है तो बनाओ बेस्ट डांसर बनाओ सिंगर बनना चाहता है absolutely तो डू दैट सो दैट एटलीस्ट चाइल्ड इज एबल टू hone on that skill rather than running after those main streams of exactly science commerce and parent can support their child being a guide or cheerleaders not hmm. pressure builders Yes, wow. parents are nowadays pressure builders that's why Hmm. today's in society children are doing wrong things Correct, correct. Because there's so much of pressure, so much of pressure. so much of pressures So मैम व्हाट इज योर विजन आपका ड्रीम क्या है बच्चों के लिए मतलब आई वुड से कि फॉर टुडेज चिल्ड्रन व्हाट इज योर ड्रीम एंड व्हाट रोल शुड पेरेंट्स एंड टीचर्स प्ले प्ले टू मेक द ड्रीम इनटू रियलिटी बिकॉज देखो आप टीचर भी रह चुके हो आप प्रिंसिपल भी रह चुके हो आपने सब कुछ देखा है मतलब इन अ नटशेल यू हैव सीन एवरीथिंग अप्स डाउन्स इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन हैप्पीनेस एंगर एवरीथिंग सो व्हाट इज योर ड्रीम फॉर चिल्ड्रन कि बच्चों को ऐसा होना चाहिए दैट्स वन सेकेंडली पेरेंट्स और टीचर्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो ड्रीम आपकी फुलफिल हो first of all
आई हैव टू से वन थिंग, जब आप लोग के समय आप पढ़ते थे तो पीटीएम में पेरेंट्स आते थे और कहते थे टीचर्स को, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट्स वेरी फैक्ट, मैम इनको 2 थप्पड़ लगाइए। ये एकदम कहानी सुनते हैं, बात नहीं सुनते हैं, पढ़ते नहीं है, सिर्फ दिन भर खेलते रहते हैं। दैट टाइम देयर इज नो मोबाइल, नथिंग। आज मैं फेस करती हूँ पेरेंट टीचर मीटिंग में, पेरेंट्स आते हैं और मुझे कहते हैं फलाना टीचर से मेरे बच्चे को इस तरह से डांटा था कि वो इतना ह्यूमिलेट हुआ है कि वो डिप्रेशन में चला गया है, उसको डॉक्टर दिखलाना पड़ रहा है, काउंसलिंग करनी पड़ी है, मेडिसिन खाना पड़ रहा है। तो मैंने पूछा क्या बात है, क्या हुआ था क्लास में? मैंने सोचा कोई बदतमीजी की होगी। पेरेंट्स ने कहा मैम वो होमवर्क करके नहीं लाया था। मैंने फिर टीचर को बुलाया, उस टीचर को, कि पेरेंट्स चिल्लाए जा रहे हैं, सिर्फ होमवर्क नहीं करके लाया था, आपने उसे डांटा, उसे समझा सकते थे। मैंने भी टीचर से पूछा कि एक दिन होमवर्क करके नहीं लाया तो क्या हुआ? पेरेंट्स ने कहा, टीचर ने कहा कि मैम ये कभी होमवर्क करके नहीं लाता। ये चीज पेरेंट के दिमाग में कभी नहीं आई, लेकिन वो क्या कहते हैं, आ गए लड़ने के लिए तैयार होकर कि आज मैं टीचर्स को मजा चखाऊं। ये सब बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे दिख रहा है ना, बच्चे को दिख रहा है क्या वैल्यूज है। मैंने पेरेंट्स के सामने टीचर्स को कहा कि क्यों इतना सर दर्द लेते हो, दे दो उसको ग्रेड डी और ई, फेल ना होगा और तो कुछ नहीं होगा। पेरेंट्स चुप है, उनको तो ग्रेड देना है ना, कि होमवर्क और क्लास वर्क में क्या उनको दे। तुमने कहा दे दो डी और ई, कोई जरूरत नहीं है। जब पेरेंट्स आप पर इतना हावी हो रहे हैं कि आप उसको समझा सकते थे, डांटे क्यों? पहले तो मार भी देते थे टीचर, आज तो मार भी ही नहीं है, टच ही नहीं करते हैं। तो डांटना भी आज मतलब गुनाह हो गया, क्राइम हो गया। तो मैंने कहा क्यों इतना सर खपाते पेरेंट्स के सामने? मैंने कहा आपको ग्रेड से मतलब है ना, आप उसको ई दे दीजिए, फेल ही ना होगा, पेरेंट्स को कुछ नहीं होगा। देखो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनका बच्चा ऐसे भी इसमें चला गया है, डिप्रेशन में चला गया, उनको ई दे दो। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, दैट इज सरकास्टिक, आई टोल्ड देम, बट मेरे कहने का मतलब है nowadays teachers also very handle with them very carefully, but problem will not solve. These problems will not solve. In this connection, parents come forward and support the school and teachers, not their own child. This is the main thing. Yes. Parents support ही नहीं करते। पहले जैसे कहते थे आप मारिए, आज तो कहते आपने टच किया था, आपने क्यों डांटा, ये बात है। तो मैंने कहा ना कि ये जनरेशनल गैप है, वही है, जेनजी है। हमने जो अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, आपको सब दे दे। अरे वो इतना लेने लायक हुआ है कि नहीं, ये तो देखिए। आज के पेरेंट की ये सोच है कि मैंने ये नहीं किया, मैं ये भी दूंगा, मैं आपको सब कुछ दूंगा। अच्छा तुझे खिलौना चाहिए, मेरे को पता है ये वाला लेगो खिलौना कभी नहीं मिला, चल 2000 15,000 20,000 का खिलौना दे देते हैं, कोई बात नहीं। अरे वो खिलौना 2000 15,000 नहीं, आपके रूम में प्ले स्टेशन लगा देता हूँ। अरे प्ले स्टेशन वो कब देखेगा, कब पढ़ेगा, इसका आपने ठीक किया है? ये रूटीन आपने ठीक बनाया है अभी तक? तो ये बात है, पेरेंट्स के दिमाग में एक ही चीज है, मुझे नहीं मिला था अपने पेरेंट्स से, लेकिन मैं पेरेंट्स होकर सब कुछ दूंगा। ये चीज जो है वो एक गलत दिशा में बच्चों को ले जाए। आपने कहा ना आपने क्या ड्रीम किया, क्या थिंक किया है। When I think of the future for today's children, very simple. It's very simple. Children must be a very simple person, well confident, and being a good human being. Wow. Children faces challenges, but trust their abilities. I have that abilities. That trust is much more important. Yeah. Nowadays, teachers are architects. Architects' possibilities, nothing else. They can guide them. They can show the path. They can show the avenue. But the much and most important role of the parent, being a parent, on the children, their unconditional love. Yes. Unconditional love, but constant guidance is compulsory.
And Wow. they have to accept if they made a mistake. So they have to accept that as marked as a growth. Yes, okay, मिस्टेक होगा तभी तो सही रास्ते पर जाएंगे. सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल. तो इसको भी, मिस्टेक को भी एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ द ग्रोथ है. पार्ट ऑफ लाइफ है. तभी ये ग्रोथ कर पाएंगे. हम जब जानते हैं कि इस रास्ते जाने से हम मुझे गिरना है गड्ढे में, तो ये मुझे सीख मिल गई कि अब मैं उस रास्ते कभी नहीं जाऊंगा. तो ये भी तो ग्रोथ हुआ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एंड सेकेंड थिंग, पेरेंट्स एंड टीचर्स बोथ work, they create hand in hand, otherwise they can't do. Then they create a powerful and responsible citizen, otherwise. Absolutely. Wow. Last but not the least, you just tell me these things. Last but not the least, I'm telling you, my vision is not just for children to do well in life, but to live well, to balance achievement with values and harmony. Absolutely. That is much more important. Very true, ma'am. Very true. मैंने फिर कहा कि आप कितने अंक लेकर आए, कितने परसेंटेज से मार्क्स लेकर आए, वो आपके पीठ पे नहीं लिखा रहेगा. करेक्ट. योर पर्सनैलिटी इज योर आइडेंटिटी. करेक्ट. एब्सोल्युटली. वाओ, ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल. When you say this, I remember मम्मा आए थे जब वो इंग्लिश में मैंने लिख दिया था पूरा पैराग्राफ, तो मम्मा ने बोला कि मैम आपने चाटा क्यों नहीं लगाया इसको. आपने हंस के बोला जो मैंने इसको सिखा दिया ना, अब उसकी पूरी जिंदगी उसको याद रहेगा. तो मतलब मुझे वो बात इतनी वो लगी कि माँ ने तो बोला ही था कि मार देते. वही बात है. एक स्टूडेंट है, एक दिन हठात मुझे फोन किया, जब मैम आपको एक खुशखबरी सुनाना चाह रहा हूँ, बहुत आप लोगों से भी सीनियर होगा. हाँ. तो मैंने कहा सुनाइए, कौन है. तो उसने अपना नाम बताया. कहा मेरी बेटी ने 99 लाया है हिंदी में मैम, मैंने उसे पढ़ाया था क्योंकि आपने मुझे पढ़ाया था. मैंने कहा यही मेरी गुरु दक्षिणा है, क्योंकि आपने मुझे हिंदी पढ़ाया था, मेरी बेटी ने 99 लाया है, और मैं इसलिए खुश हूँ कि उसको ट्यूशन नहीं दिया गया था हिंदी का, मैंने उसे पढ़ाया था. क्या बात, बहुत अच्छी बात है. ने कहा नहीं मैम, मैं आपको इसलिए फोन कर रहा हूँ कि आपने मुझे पढ़ाया था और वो मुझे आज तक याद है, और मैंने उसे पढ़ाया. तो देखिए आज मेरा गर्व से सर ऊंचा हो गया है कि उसको 99 मिला. कितनी तो बड़ी बात है. मेरे लिए क्या हुई स्वाति, ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा हुई. बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैंने आपको अभी यही बताया ना, जब हम लोग आ रहे थे लाइफ में, मैंने बोला ना कि मुझे याद है कि मैं इतनी खराब थी हिंदी में, फिर भी आपने बोला कि किसी ने, मैं बापूजी हाउस में थी, तो किसी ने आपको बोला कि आप जानते हो कोई लड़की जो अच्छा बोल सकती है. आप मेरे को क्लास में बुलाया, आपने हाथ पकड़ा और सीधा मेरे को उस कमरे में लेके गए. अब बोलो, जैसे तुम बात करती हो वैसे बात करो, और पूरा आपने मेरे को एलोक्यूशन सिखाया था. और उस साल और उस टाइम मेरा हाउस फर्स्ट आया था. और पहली बार भूल पाओगे. ये चीज आप कभी नहीं भूल पाओगे. बिल्कुल नहीं. और उस समय सब भी धाकड़ थे, मतलब सारे हाउसेस के लोग. मैं समझ गई, अनुपमा और ये सब थे ना, अनुपमा सुनैना सब लोग थे. तो मुझे था कि मैं तो जीत ही नहीं सकती इनके सामने, ये तो इतने सालों से कर रहे हैं. बट आपने बोला नहीं, अगर इस बार आपने, मतलब आपने उसी ढंग से मुझसे बात करी थी और मुझे पूरा सिखाया था. जैसे बोलते हैं ना, हाथ पकड़ के चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया और भागा मेरे साथ. तो आप वैसे थे मेरे लिए कि आप मेरे साथ भागे कि नहीं, जब तक तेरे को याद नहीं होगा तब तक यहीं बैठी रहे. मम्मी को फोन किया क्योंकि मैंने तुम्हारी उस एबिलिटी को देख लिया था. यही टीचर्स का काम है कि एबिलिटी को निकालना. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. एंड थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि अभी भी आज भी मैं बेटी को स्टोरी सुनाती हूँ तो बेटी हंसती है कि आपको भी मैम डांटते थे. बच्चों को तो ये लगता है ना कि माँ को कैसे टीचर है. हाँ. तो मैंने बोला बेटा, जब मैं टीचर बनी थी तो सबसे पहले मैं यही सब याद कर रही थी. आपको, महुआ मैम को, एक बहुत पुरानी ग्रेड 2 की टीचर होती थी मेरी, रेखा मैम को, अरुंधति मैम को. मतलब ये सारी टीचर्स वैसे हैं मेरे लिए, मतलब पौत्राली मैम. तो ये सारे टीचर्स वैसे हैं मेरे लिए जो मैं नहीं भूल सकती मैम.
आज भी जब मैंने आपको मैसेज किया कि मैम आप मेरे साथ लाइव करोगे, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड था, मेरे था कि मैं कभी आपसे ऐसे ओपनली नहीं बोल पाऊंगी कि मैम आप मेरे लिए क्या हो, बट शायद मैं लाइफ में बोल पाऊंगी कि मैम सच में आप मेरे लिए क्या है। बिकॉज हर बार जब मैं खुद कुछ बोलती हूँ, पेरेंट्स को बोलती हूँ, किसी से बात करती हूँ, तो मुझे खुद लगता है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होगी, बट जब अब सारे जज्बात जब निकलते हैं तो खुद ही लगता है कि नहीं, जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे इतना धरती पे रहना सिखाया, तो मुझे पता है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कितना इमोशन के साथ बोलना है, चाहे मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, दादी भी बन जाऊं, नानी भी बन जाऊं, बट वो चीज नहीं छटेगा मैम, क्योंकि वो आप लोग ने है। सो थैंक यू सो मच मैम, मेरे लिए बहुत लगा, थैंक यू। नहीं मैम, अभी मैं आपको छोड़ नहीं रही, अभी हमारा रैपिड फायर राउंड होने वाला है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी। 8 क्वेश्चंस है, सिंपल सिंपल है, फन वाले क्वेश्चंस है, ठीक है? अच्छा, तो हम आपको जानना चाहते हैं कि आप मतलब आपके लिए फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। वो तो मुझे पता था, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? हिंदी था। मैं भी अपने हिंदी टीचर से इंस्पायर्ड हुई थी स्कूल में। तो मुझे था कि मुझे हिंदी लेकर ही पढ़ना है। वाओ, दैट्स लवली। कौन सी ऐसी टीचर है जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? वही मेरी हिंदी टीचर, मेरी स्कूल की हिंदी टीचर। अच्छा, अरे वाह, वेरी नाइस। सो अगर आप टीचर नहीं होते तो आप कौन सा करियर चूज करते? टीचर नहीं होती तो क्या बनते आप? ऐसे मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा को पता ही नहीं था 1 साल तक कि मैं भारतीय विद्या भवन में सर्विस करती हूँ। सिर्फ मम्मी को पता था क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था। ओह वाओ। तो क्या करती, वही बच्चे पालती, घर संभालती, किचन में खाना बनाती और क्या करती। नहीं मैम, तब तो बहुत बहुत बड़ी चीज करी फिर तो आपने। फिर मैं पापा को हाथ पकड़कर लाई, स्कूल दिखलाई। 15 दिन मुझसे बात नहीं किए थे, लाई स्कूल दिखलाई, तब जाकर मेरे पापा शांत हुए। वाओ वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। ये तो हमें पता नहीं था सच में। और जिस दिन मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला ऑल ओवर भवंस में, बेस्ट सीनियर टीचर का अवार्ड मिला, टिल डेट कैलकाटा भवंस में किसी को नहीं मिला। वाओ वाओ। उस दिन मेरे पापा आए, जब मुझे अवार्ड मिल रहा था, और मुझे आशीर्वाद दिया। उनका ही ब्लेसिंग्स है, आज वो नहीं है, उनका ही ब्लेसिंग्स है कि मैं आगे बढ़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। आपका फेवरेट बुक? सुधा मूर्ति के सारे बुक्स मेरे फेवरेट है। हाँ, I fond of सुधा मूर्ति। I am also very fond of her. I am fond of सुधा मूर्ति। हाँ मैम, पता है जिस दिन मेरा बुक का लॉन्च हुआ था दिल्ली बुक फेयर में, उस दिन वहां पर सुधा मूर्ति जी भी थे। वाह। तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी वो, मतलब बहुत बड़ी बात। मेरे पास पूरा कलेक्शन भरा हुआ है सुधा मूर्ति। वाओ वाओ वाओ, मुझे बहुत पसंद है। छोटी छोटी बातें लिखती, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। वन वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करे। ये मैं कैसे कह सकती हूँ? आप कहोगे ना मैम, मैं फिर आपको कहूंगी, मैंने तो सोचा हुआ है। आप ही कहो, मैं अपने को क्या डिस्क्राइब करूं? नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है वन वर्ड जो आप, मतलब हो सकता है आपके स्टूडेंट्स ने आपको कभी कुछ बोला हो, या कोई एक चीज जो आपको अपने बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। मैं ये लाल बिंदी तो नहीं पूछूंगी मैम। वेरी फनी, बट आई एम टेलिंग यू, रेखा और रेखा जब से तुम्हें देखा। क्योंकि तो मैं कहती हूँ कि एक बॉलीवुड में रेखा है और एक यहाँ रेखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाओ मैम, ये तो बहुत बड़ी चीज थी। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। आप बोलो, आपने क्या सोचा? मेरे लिए तो आप डायनामाइट हो। यू आर द बिगेस्ट डायनामाइट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि यू हैव ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग एंकर। आपने कभी भी मुझे गलत गाइड नहीं किया और कभी भी मेरी प्रशंसा फालतू की नहीं करी। मैंने किसी को नहीं किया गलत गाइड। आपने हमेशा मेरे को टू दी पॉइंट बोला, नहीं मुझे नहीं पसंद आया। अगर कुछ नहीं भी पसंद आया, सब लोग ने बोला पसंद आया, तब भी आप मेरे को मुंह पे बोलते थे, देखो स्वाति मुझे नहीं पसंद आया बेटा, हो सकता है आप ऐसे कुछ कर लो तो पसंद आए, लेकिन अभी तो नहीं पसंद आया। आप तो फिर भी वोकल थे। मयंक, हाँ मयंक तो मुझे नहीं पसंद करता था, वो कहता था मैम, वो तो भागता रहता था। बहुत जब भी मुझे देखती है तो डांटती है, जब भी मुझे देखती है वो डांटती है। राइट? हाँ बिल्कुल मैम, वो तो आज भी आपसे डरता है।
हाँ मुझे मालूम है। फिर मैंने उनको कल कुछ बोला, बच्चे मैंने आज भी मुझसे डरते हैं। मैंने अभी अपने एक स्टूडेंट के बच्चों के इसमें गई थी, तो वहां हाँ भी मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आप इतने जॉली हो आते ये वो, लेकिन आपको स्कूल में देखकर बहुत डर लगता था। हाँ रियूनियन वो वगैरह में मिलते हैं तो कहते हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल 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 मैम। सो बस इतने ही क्वेश्चंस थे, ये खत्म हो गए। थैंक यू, थैंक यू। ठीक सो आंसर दिया ना? हाँ जी, ठीक आंसर दिया ना? बहुत ब्यूटीफुल मैम। मतलब बिफोर वी एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर एवरीथिंग मैम। मतलब टू ऑल द टीचर्स वाचिंग, वी सेलिब्रेट यू टुडे एंड ऑलवेज। आप टीचर हो कि नहीं, आप प्रिंसिपल हो कि नहीं, आप कौन हो क्या हो, बट आप हमारे लिए बहुत कुछ हो मैम। सो व्हाट एम आई टुडे इज बिकॉज ऑफ द थैंक स्कूल यू, एंड बिकॉज ऑफ टीचर्स लाइक यू। थैंक यू डियर। आप भी खूब आगे बढ़ो, खूब खूब ऊंचाई पर चढ़ो, थैंक यू and मैम, fulfill your all dreams and desires. May थैंक यू God सो bless you, मच। dear. Thank you, ma'am. Thank you so much. Welcome, Thank welcome, Love you, welcome. ma'am. Love you, ma'am. Thank you. Thank you Love so you much. too.